आप सभी को हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. With whatever you are comfortable, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel, Achievers Success Mantra. I hope you all are doing well by the grace of God. In our last session, we have discussed about linking and its types, that is external linking and internal linking. Significance of linking: sending email from a browser, tables, the table tag and its attributes. We have covered few tags of table in our last session. Today we will continue with our table tags and will discuss the TD tag, the TH and TR tags, the T head tag, the T foot tag, the T body tag, advantages of HTML, and last will be limitations of HTML. So let's start with our first topic, that is the TD tag. We all know that TD denotes what? It denotes our table data. Do you know it is also known as the workhorse of the table? इसे टेबल का workhorse भी कहा जाता है. As we use attributes in our table tag, we can use different attributes in TD tag also. The first one is aligning table tag, that is align attribute. आप सभी को पता है कि align का मतलब alignment होता है, यानी कि अपने डाटा को लेफ्ट, राइट, सेंटर शो करना. Then will be our setting the cell width. सेल की width को नापना, एडजस्ट करना. For this we have width attribute. So let's use our these two attributes first. For this we will open our table.html file that we have created last time. ये फाइल हमने last time बनाई थी. In this we have mentioned many things. इसमें हमने बहुत सारे attributes टेबल टैग के अंदर अपने डिफाइन करे थे. Now in TD tag we will mention our attributes. तो हमने अपना ये TD tag ले लिया है और इसके अंदर हम align attribute को इस्तेमाल कर रहे हैं. And the align attribute that we are using for this, we are using center. इसमें हम center alignment का यूज कर रहे हैं. Save this file and let's open this file in Google Chrome. इसी फाइल को हम Google Chrome में ओपन करते हैं. Okay. So we have applied center. तो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे भी हमें सेंटर में नहीं पता लग रहा कि आया है या नहीं आया, बिकॉज अवर सेल विड्थ इज वेरी स्मॉल. तो चलिए इसमें एक बार अपनी सेल विड्थ भी अप्लाई करके देखते हैं कि सेल विड्थ कितनी होनी चाहिए हमारी. तो चलिए हम विड्थ को अप्लाई कर रहे हैं. तो विड्थ के लिए हम रख लेते हैं अपना डाटा 100 and let's see whether there are any changes or not. तो जो हमने सेल विड्थ करी है, ये सेल विड्थ हमें हर एक TD टैग के अंदर डालनी पड़ेगी. तो ये हम हर एक टैग के अंदर मेंशन कर देते हैं अपने. Now save your file and see the changes in width. If there are no changes, you can increase its size. आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं. So I am taking this attribute and I am mentioning this attribute in my every TD tag. मैं इसको अपने हर TD tag में mention कर रही हूँ. And this row I am deleting. 2 rows are sufficient for us. तो देखिए आपके सेल की जो विड्थ है वो बढ़ गई है. ओके. अब हम इसका अलाइनमेंट जो है हर एक TD टैग के अंदर हम अलाइनमेंट सेट कर देते हैं सेंटर में.
You also practice it practically at your home so that you better understand all these things. तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सब. तो देखिए आपका जो डाटा है वो सेंटर में हो गया है. सो दीज आर द टू एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन अप्लाई. Align attribute and second is your breadth attribute. Let's move on to our third attribute, that is cells background. A background attribute. अगर हमें सेल का बैकग्राउंड मेंशन करना है तो वो हम कैसे मेंशन करेंगे. तो टीडी से आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही बैकग्राउंड मेंशन कर सकते हैं. सो लेट्स मेंशन अवर दिस एट्रीब्यूट. I am removing this align, and here I will mention what? Background equals to inverted commas, and here you have to mention the name of your file. So now let's move to our folder where our data is saved, and here go to properties, select path from here, paste, backslash, write the name rose1.jpg and save it. चेक योर रिजल्ट. तो देखिए उसमें लास्ट में आपका क्या हो गया, बैकग्राउंड इंसर्ट हो गया. तो इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर सेल में अगर चाहें तो अपना बैकग्राउंड इंसर्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज योर बीजी कलर, दैट इज योर बैकग्राउंड कलर. जैसे हम टेबल टैग में या बॉडी टैग में अपना बैकग्राउंड कलर मेंशन करते थे, उसी तरीके से आप एक पर्टिकुलर सेल में भी अपना बैकग्राउंड कलर मेंशन कर सकते हैं. सो इन अवर सेकेंड over here we are mentioning our background color. हम यहाँ पे अपना background color mention कर रहे हैं. Save your file and check your result. So over here you have set your background color. इसमें आप अपना background color set कर चुके हैं. The next attribute is your changing the cell span, यानी कि row span, col span. अगर आपको दो रोज को मर्ज करना है दैट यू कैन डू. अगर आपको दो कॉलम्स को मर्ज करना है दैट यू कैन डू. सो लेट्स अप्लाई दिस रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि इन दोनों को अप्लाई करने का रिजल्ट क्या होगा हमारे पास. सो हेयर वी हैव अवर डाटा. यहाँ पे हमारे पास हमारा डाटा है. इसके बाद आपको क्या करना है, टीडी टैग के अंदर अपना मेंशन करना है. तो टीडी टैग के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ रो स्पैन. रो स्पैन इक्वल्स टू 2 एंड लेट्स सी द चेंजेस. तो देखिए आपकी जो दो रोज थी वो क्या हो गई है, कंबाइन हो गई है. So in this way you can do the call span also. Let's perform call span. अब हम एक बार call span perform करके देखते हैं. Here let's apply call span equals to 2. Save and see your result. Okay. So in this way you can do row span and call span. The next attribute is what? V-align. It means vertical alignment of cell contents. So let's check whether our contents will be aligned vertically or not. Over here write your V-align equals to bottom we have to do. Save and check. तो देखिए आपका जो डाटा था वो क्या हो गया, बॉटम में शो हो गया. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को बॉटम में भी अलाइन करवा सकते हैं. The next is the th and tr tags. The th tag is for table header. जो हमारा th tag होता है वो टेबल में हेडर टैग की तरह इस्तेमाल होता है, हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है.
द कंटेंट्स डिक्लेयर्ड एज हेडर, वो कंटेंट्स जिनको हम हेडर की तरह डिक्लेयर करते हैं वो एक अलग ही स्टाइल में डिस्प्ले होते हैं, यानी कि आपको एक अलग ही फॉर्मेट में वो नजर आएंगे। इट एक्सेप्ट द सेम एट्रीब्यूट्स एज टीडी टैग, जो हमने अभी एट्रीब्यूट्स टीडी टैग में लगाए हैं वही सेम एट्रीब्यूट्स आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट a table in which we have what? We have our th tags, जिसमें हमारे th tags हमारे पास अवेलेबल हो। तो th tags के लिए चलिए हम चलते हैं और अपना डाटा डिस्प्ले करते हैं। Here copy it and paste it over here, क्योंकि हमारी जो हेडिंग होती है वो हमेशा टॉप पे होती है। Mention it here. Everywhere I am mentioning th tag and you have to close the th tag also. आपको क्या करना है, आपको th tag close भी करना है, because if you will not close it, it will not work. ये work नहीं करेगा। Okay. In place of names, I should give a heading like team 1, then team 2, and then is your team 3. Okay, save your file and let's see whether we got the headings or not. तो देखिए बाकी टेबल के कंपैरिजन में आपके पास यहाँ क्या है, ये आपके पास बोल्ड में अवेलेबल है, जबकि बाकी पूरा डाटा आपके पास क्या है, नॉन बोल्ड लेटर्स में आपके पास अवेलेबल है। ओके, हमने अपनी टीडी टैग के अंदर रो स्पैन कॉल स्पैन लगाया था, तो चलिए वो रिमूव कर देते हैं। ओनली ब्रेथ एट्रीब्यूट आई एम लेफ्टिंग, मैं केवल ब्रेथ एट्रीब्यूट यहाँ पर छोड़ रही हूँ। ओके, एंड रेस्ट एट्रीब्यूट्स आई हैव रिमूव। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखिए हमने जो ब्रेथ एट्रीब्यूट यहाँ पे करे थे, हटाए थे, वो सारे हट चुके हैं। ठीक है, जो भी हमने एट्रीब्यूट सीडी के अंदर लगाए थे दे ऑल आर रिमूव्ड नाउ। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें एट्रीब्यूट्स लगाने हैं टीएच टैग के अंदर। तो चलिए टीएच टैग के अंदर पहले अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट लगाते हैं। इसके अंदर हम राइट यूज कर लेते हैं। सेव एंड चेक, देखिए आपका डाटा जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया। ओके, दूसरे टैग में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ अपनी अप्लाई कर लेते हैं। ब्रेथ इक्वल्स टू 200 मेंशन कर सकते हैं। ओके, इन अदर टैग आल्सो आई एम मेंशनिंग द सेम ब्रेथ। लेट्स चेक। ओके, तो इस तरीके से क्या आपकी ब्रेथ इंक्रीज हो जाती है। Next attribute that we can use is what? Align we used, width we used, then is background. So let's use the background. Okay. And background. Let's move to the folder we have saved the images. Move to properties. Copy the name of location. Paste it over here. Backslash. And then you have to select the file name. Write your file name over here. Save your file and check.
save your file and check। तो आपका बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू बीजी कलर। अब हम यहीं पे बीजी कलर की बात करते हैं अपने। यानी कि आपका बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, यू वांट व्हाट, ग्रीन, so it's green। Okay, now the attribute that is left is row span and column span, and then is your v-align। ओके, तो इसमें अब हमें क्या करना है, अपना v-align डालना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे v-align मेंशन कर देते हैं। इन प्लेस ऑफ राइट वी राइट बॉटम, check। okay, now row span and col span, mention here row span equals to 2, save and check। okay, so your two rows span। in the same way, let's check col span। so this is col span। okay, इस तरीके से आपका ये col span हो गया। so all the attributes of th tag we have applied। the next tag is your tr tags, that stands for table row, जो हम अभी बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। इट ऑल्सो यूजेज द सेम एट्रीब्यूट्स एट टीएच टैग। ये भी टीडी टैग की तरह सारे एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें हम रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज नहीं करते हैं। तो चलिए अपने टीआर टैग के अंदर हम सारे एट्रीब्यूट्स अप्लाई करके देखते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे। ओके, तो हमारा टीआर टैग हम लेते हैं। इसके अंदर हम पहला अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट इक्वल्स टू राइट, देन width equals to 200, bg color equals to red, save and check। ठीक है, तो हमारा रोज पेन का कलर रेड हो गया। हमने उसकी अलाइनमेंट राइट की थी, अलाइनमेंट राइट हो चुकी है, और फिर हमने 200 गई थी, वो 200 हो गई है। ठीक है, अब इसी के अंदर हम और क्या अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड के अंदर हमें पूरा पाथ देना होता है। तो हमने इमेज का तो पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लोकेशन का पाथ देना है। सो राइट क्लिक ऑन इट, go to properties and copy the path over here। paste it, save and check। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें वी अलाइन एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वी अलाइन यहाँ पर यूज करते हैं ए अलाइन की जगह, एंड लेट्स मेक इट बॉटम। ओके, तो इस तरीके से आप ये चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर द टी हेड टैग।
टी हेड टैग किस लिए यूज होता है? टी हेड टैग इज यूज टू डिफाइन अ सेट ऑफ हेडर रोज। हेडर रोज को डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और एक टेबल में केवल एक ही टी हेड टैग इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मेन टी हेड कमांड होती है उसे मेन टेबल की कमांड फॉलो करनी पड़ती है। अगर वो फॉलो नहीं करेगी देन ऑब्वियसली दैट टैग विल नॉट वर्क। इफ अ टेबल, इट इज इफ, ओके, इफ अ टेबल इज वेरी बिग, अगर एक टेबल बहुत ज्यादा बड़ी है एंड इज स्पेनिंग अक्रॉस पेजेस और बहुत सारे पेजेस तक एक्सपैंड कर रही है, देन द रोज सेट बाय टी हेड, तो टी हेड के जरिए हम जो रोज अपनी सेट करते हैं वो क्या होंगी? रेप्लिकेट होंगी, बढ़ती चली जाएंगी हर एक पेज पर। वेयर दिस टेबल इज डिस्प्लेड, जहां पे भी ये टेबल डिस्प्ले कराई जाएगी। टी हेड डिफाइंस द टेबल हेडर सेक्शन, जो टी हेड होता है वो टेबल के हेडर सेक्शन को डिफाइन करता है। दैट मे हैव मल्टीपल रोज इन इट, जिसमें कई सारी रोज हो सकती हैं। और टी हेड टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? अलाइन, बीजी कलर और वी अलाइन। द नेक्स्ट इज टी फुट टैग। T foot tag is used to do what? It is used to set aside related cells as table footer. जो रिलेटेड सेल्स होते हैं उनको टेबल फुटर के तौर पे ये इंडिकेट करती है, शो करती है। और ये भी टी हेड टैग की तरह केवल एक ही बार एक ही टेबल में लगाई जा सकती है। इट बेसिकली एक्ट्स एज ए फुटर फॉर द हेड पोर्शन ऑफ द टेबल। टेबल का जो हेड पोर्शन होता है उसके फुटर के तौर पे काम करता है। द सेट ऑफ रोज डिफाइंड एज टेबल फुटर बाय टी फुट, टी फुट के द्वारा जो रोज टेबल फुटर की तरह डिफाइन की जाती हैं वो भी रेप्लिकेट हो जाती है मल्टीपल पेजेस पे और हमेशा बॉटम में ही दिखाई देती हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ टी फुट टैग आर द सेम एज योर टी हेड टैग, दैट इज अलाइन, बीजी कलर एंड वी अलाइन। The last tag of your table is the T body tag. It is used to define the body section of the table. ये आपके टेबल के बॉडी सेक्शन को डिफाइन करने के काम में आता है। It is also used to define table body rows. टेबल बॉडी की रोज को भी डिफाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एट्रीब्यूट्स हम इसमें यूज करते हैं वो क्या है? अलाइन, बैकग्राउंड, बीजी कलर और वी अलाइन। बैकग्राउंड और बीजी कलर एट्रीब्यूट्स जो होते हैं विल बी अप्लाइड टू ऑल द रोज दैट आर पार्ट ऑफ टेबल बॉडी। जितनी भी रोज आपकी टेबल बॉडी का हिस्सा हैं उन सब में आप बैकग्राउंड और बीजी कलर एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। इट इज यूज इनसाइड अ टेबल टैग, और ये हम टेबल टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने 3 टैग पढ़े, टी हेड, टी फुट एंड टी हेड। तो इन तीनों टैग को चलिए अप्लाई करके देखते हैं कि इन तीनों टैग का इस्तेमाल कैसे होता है। ओके, सो लेट्स डू व्हाट, क्लोज दिस, इसको हम क्लोज कर देते हैं अपनी फाइल को एंड लेट्स ओपन अ न्यू नोटपैड फाइल। न्यू नोटपैड फाइल ओपन करते हैं एंड राइट अप अ बेसिक HTML स्ट्रक्चर, और इसमें हम अपना बेसिक HTML का स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं दैट यू ऑल नो, जो कि आप सबको पता है। इन द टाइटल टैग मेंशन योर माय सेकंड टेबल, ओके, एंड देन क्लोज योर टाइटल टैग, then close your head tag. Now open your body tag where we have to mention each and everything. Then close your body tag, अपना body tag close करिए and close your HTML tag, अपना HTML tag close करिए। Now open your table tag, क्योंकि हमें टेबल टैग के अंदर ही ये सारे टैग्स अप्लाई करने, तो हमें अपना टेबल टैग ओपन एंड क्लोज करना है। नाउ इनसाइड दिस टेबल टैग व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन टी हेड टैग, ओके, एंड इनसाइड इट मेंशन योर बीजी कलर। बीजी कलर you can mention pink and close it.
Okay, then create a row. Inside it, mention your TD tag. Okay, inside it we are mentioning our header 1. Then again take a TD tag and write header 2 and close it. Okay, save this file with a name table2.html. Okay, now do rest of the coding. अब बाकी कोडिंग हम लोग अपनी पूरी कर लेते हैं. Copy this, paste and change your data over here. यहाँ पे अपना डाटा चेंज कर लीजिए. Make it 3 and 4. Okay, and then after this close your t head tag. इसके बाद अपना t head tag बंद कर लीजिए. Okay, done with this. Now after this mention your t body tag. इसके बाद अपना आप t body tag mention करिए. Inside t body tag again provide a background color. This time you can mention blue, or if you want yellow you can mention. Mention your tr tag in td tag. Mention over here body cell data 1. Okay, copy it from here and paste it in the other td tag. Okay, again copy this whole row tag and mention it over here, and in place of 1 and 2 make it 3 and 4. Done with this. After this again copy this and make it 5 and 6. Then close your T body tag. Now open up your T foot tag and mention bg color equals to cyan. You can mention if you want. Now mention your row data and inside it write footer data 1 and footer data 2. Okay, and then close your T foot tag. Now move up where you have saved your file, right click on it and open it with Google Chrome. इसे Google Chrome के साथ आप open करिए. Okay, so in this way you are getting your data. On the top with pink you have T head tag, then with yellow you have T body tag, and at the end you have T foot tag. Okay, if you want to create the border of your table, so inside your table tag you have to mention what? You have to mention the border. Border equals to, mention it. I am taking 2.
and check whether the border is created or not. So you have created the border, right? So in T head we have used the background color. So if you want, you can use a align tag also, and make it right. And let's check whether our data is aligned right or not. So it is aligned right. Okay. In our T foot tag, let's do the alignment as right. Check it. So your footer data is also aligned. Okay. So in this way you can perform with these three tags also. So our next topic is advantages of HTML. अभी तक हमने HTML के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा है. So आइए जानते हैं कि एक्चुअली में हम इतना ज़्यादा HTML को क्यों प्रेफर करते हैं. Why we actually use HTML for designing our web pages. So the advantage number one of HTML is it is easy to use, learn and implement. इसको यूज करना बहुत आसान है, लर्न करना बहुत आसान है, और यूज और लर्न करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. नो स्पेशल सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड. इसके लिए हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता. आपने देखा होगा अभी तक हमने जितना भी HTML परफॉर्म किया है सब में हमने केवल एक नोटपैड का यूज किया है और अपनी उस फाइल को रन कराने के लिए गूगल क्रोम का यूज किया है. तो आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ा है. थर्ड, इट कंटेन्स पावरफुल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज. आपके पास टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं. कितने सारे टैग्स आपके पास अवेलेबल होते हैं. एंड HTML पेज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. हम इसे किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट एडिटर्स का इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हैं. हाइपरलिंकिंग फैसिलिटी एनेबल्स विजिटर और यूजर्स टू ट्रैवर्स टू एनी HTML डॉक्यूमेंट. इसमें जो हमारे पास हाइपरलिंकिंग की फैसिलिटी होती है वो यूजर्स को या विजिटर्स को, जो भी एक विजिटर किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा है उसको ये अलाउ करता है कि वो उन हाइपरलिंक्स के थ्रू किसी भी पेज पे जा सकता है, मूव ऑन कर सकता है. देन फाइंडिंग एन एरर इज इजी. इसमें एरर्स को फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है. एंड द लास्ट इज इफ compatibility with the user habits, expectations and multiple platforms is the goal. अगर इसका गोल है यूजर के हैबिट्स को पहचानना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करना, देन HTML इज द ओनली अप्रोच. तो ये केवल एक HTML ही है जिसके थ्रू हम एक गुड वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. सो एज वी टॉक्ड अबाउट एडवांटेजेस, इट हैज सम लिमिटेशंस आल्सो. इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर हम ट्रू सेंस में बात करें, असलियत में बात करें, तो ये वास्तव में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. क्योंकि हम मेनली जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी आती है C++, जावा, .NET, ऑल दीज. एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन. हम इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्प्ले इवन सिस्टम डेट. इसमें हम सिस्टम की डेट भी डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे कि आपकी VB स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, दे आर रिक्वायर्ड टू हैंडल कैलकुलेशंस. हमें अगर कैलकुलेशन करनी है, वैलिडेशंस लगाने हैं, इवेंट्स लगाने हैं, तो इनके लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है. नो स्पेशल और सेपरेट डीबगर इज प्रोवाइडेड. इसके लिए कोई अलग से सेपरेट डीबगर जो कि बग्स को फाइंड कर सके वो हमें नहीं मिलता है. कोड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस टू मेक अ मोर इंटरेक्टिव वेब पेज. अगर हमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना हो तो इसकी जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, जो डिफिकल्टी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. देन इज कॉम्प्लेक्स HTML कोड इज हार्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड. और जब HTML कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसे पढ़ना, उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सिंटेक्स एरर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड. सिंटेक्स एरर्स वो होते हैं जो कभी टाइप करते समय हो जाते हैं हम लोगों से, वो सिंटेक्स एरर कहलाते हैं. और वो ना तो हम पहचान पाते हैं
और वो आसानी से HTML पेज पे डिस्प्ले हो जाते हैं। कई बार तो हमें वेब पेज डिस्प्ले कराने के बाद पता लगता है कि दैट यस दिस इज द फॉल्ट, यहाँ पर गलती है, देन वी करेक्ट इट। तो सिंटेक्स एरर्स हमें टाइप करते समय, डिजाइन करते समय पता नहीं लगते हैं। So this is all for today. So if you have any doubt in this session, just provide us with a comment so that we provide you with a solution. अगर आपको कहीं पे भी हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए, जिससे कि हम आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें जल्द से जल्द। परफॉर्म दिस प्रैक्टिकली, इसे प्रैक्टिकली जरूर परफॉर्म करिए, बिकॉज जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में और अच्छे से बैठती हैं। Now what I would like to say is, if you are a old subscriber, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इफ यू आर अ न्यू विजिटर, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you keep getting the notifications of our upcoming videos. Meet you in the next session. Till then, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।